Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do day 9 speaking English course. So, hello Effie, welcome. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. How are you? I'm good. How about you? I am great. Thank you. Okay. I think it's cold and you have got some flu. Am I right? Yes, sir. I have got flu. So that's that. So let's get started. Today's lesson and the topic is in elementary, that is my routine. When we're talking about our routines, what we do is very simple thing. We need to learn English tense, that is present indefinite tense. It's called simple present tense, where we use subject, first form and object, that's it. All right. All right. This is the subject I, and then the first form and object. For example, I do dishes. I offer my prayer. I meet my friends. This is called our current routine, what we are doing these days. For example, how are you doing? What are you doing these days? Or what is your routine? That is how you represent yourself. Remember subject, verb, object. So let's get started with the lesson plan. In present indefinite tense, you need to remember how you start your day with the sun rising and how you go sleep after you take dinner and then you go bed. Within this, the duration of the day, you have to remember all of the things in your mind. For example, you wake up, what do you do after you wake up? Where do you go? What are your activities in the morning time? For example, you do ablution, आप वज़ू करते, you recite Holy Quran, you go for masjid, or if you are male and you are a child, you go masjid for reciting or learning Holy Quran. Then you come back and the breakfast is ready. All right. All right. After you come back from masjid, you're gonna make the breakfast enjoyable, and then you get ready for school, college, office. This is the routine. It goes like a train. Do not detract yourself. Just remember the early morning time, and then the early time, and the morning time, and the noon, and the office time, and the time when you come back from office, what do you do, and then how you finish your day, because it is more important to remember how you finish your day more than you get up. Because जब आप उठते हैं वो तो आपका एक टाइम आपको याद है, लेकिन आप अपना डे फिनिश कैसे करते हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन सी है? फॉर एग्जांपल इवनिंग वॉक, मीटिंग फ्रेंड्स in the afternoon, having friends in company, hang out, having great meal, having outing, going for a walk, taking exercise. It's more important to grace up your activities of the day. So let's get started. Sir, having का word क्यों use हुआ है? किसमें? Having male. having have वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे take का इस्तेमाल हो, जैसे I am taking tea, I am taking lunch, वहाँ पे आप having कह सकते हैं. I am having walk, I am having company. यानी have का मतलब भी होता है करना या होना या रखना. I have, और ये have के मैं आपको पहले भी इस्तेमाल बता चुका था. have to, और have to कहना हो तो फिर तो वो उसको कुछ करना होता है. जैसे मुझे जाना है, I have to go. अगर मैं कहूँ मुझे खाना खाना है, I have to eat meal. और अगर मैं कहना चाहूँ मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं कहूँगा I am having meal. have का मतलब होना भी है, रखना भी है. हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा रहे, यानी आप इस दिन में आपका ये जो दिन के आप मालिक हैं, ये आपका दिन बेहतर रहे. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वन, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड जर्नी. तो ये हैव का मतलब रखना भी होता है. सो इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू वेक अप?
This is the question to you. Okay. I got wake up at 6 a.m. What time do you wake up? यानी आप कितने बजे उठते हैं? इसका रिप्लाई आप दे रहे हैं. What time do you wake up? आप कितने बजे उठते हैं? I wake up at 7. I wake up at 8 o'clock. I wake up at 5 o'clock. आपने क्या जवाब दिया? I wake up at 6 o'clock. 6 o'clock ये एक अर्ली इन द मॉर्निंग होता है ना, सुबह सवेर होता है, यानी मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठती हूँ. तो आप कह सकते हैं, यू कैन से आई वेक अप एट 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑलराइट. Alright. व्हाट डू यू डू? आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं आफ्टर यू वेक अप? After wake up, I make ablution and offer prayer. Oh, you make ablution and then you offer prayer. Is it Fajr prayer? Yes. यानी आप क्या करते हैं उठने के बाद? सबसे पहले what do you do after you wake up? What do you do first of all after you wake up? And your answer is you make ablution. आप वज़ू करते हैं, यानी I make ablution, मैं वज़ू करता हूँ. And then you offer your prayer. आप नमाज़ पढ़ते हैं. I offer my prayer. मैं नमाज़ पढ़ता हूँ. फजर प्रेयर सुबह की. Who makes breakfast for you? My mother make breakfast for me. So your mother prepares breakfast for you. यानी Yes. आपकी मदर आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है. That's fine. What time do you go to school? I go to school at 7. At 7. Okay. What time do you wake up? आप कितने बजे उठते हैं? I wake up at 6 early in the morning. Okay, you wake up at 6 o'clock early in the morning. What do you do first of all after you wake up? I make ablution and say my offer prayer. Okay, you offer your prayer. That's fine. Who makes breakfast for you? आपके लिए नाश्ता कौन बनाता है? My mother prepare breakfast for me. My mother prepares breakfast. Do you help your mother No, in the preparation of the breakfast? no sir. Okay, good girl. What do you do after you take breakfast? I go to school. Oh, you go to school. What time do you go to school? I go to school at 7. At 7. That's nice. Now, here are some, few answer against the question which I raise up. What time do you wake up? आप कितने बजे उठते हैं? I wake up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. Early सवेरे, morning सुबह. There are two sorts of mornings, early morning and a morning. ये वही अर्ली मॉर्निंग है जो आप कह सकते हैं डान, जिसको डान बोला जाता है, DAWN, डान, जिसका मतलब होता है सुबह सवेरे. आई वेक अप लेट, मैं एक अर्ली होता है एक लेट होता है. आई वेक अप लेट, मैं जल्द नहीं उठता हूँ. आई वेक अप एट 8 o'clock, मैं 8 बजे उठता हूँ. आई वेक अप एट 12 at noon, इसने तो हद ही कर दी. कह रहा है आई वेक अप एट 12, मैं 12 बजे उठता हूँ. एट नून, पहर के वक्त. Okay. What do you do after you wake up? उठने के बाद आप क्या करते हैं? I take shower. इसका क्या मतलब है? मैं शावर लेता हूँ. I brush my teeth. मैं अपने दांत साफ करता हूँ. मैं ब्रश करता हूँ दांतों को.
क्या? मैं ब्रश करता हूँ दांतों पे। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। क्या? मैं अपने दांत साफ करता हूँ। Okay. I help my mom in the kitchen. मैं अपनी मदर की किचन में हेल्प करती हूँ। I do the dishes. मैं बर्तन धोती हूँ। Do the dishes, बर्तन धोना। I do the dishes. You do the dishes. Mother does the dishes. She does the dishes. I prepare the सर breakfast. Yes. इसमें वॉश का वर्ड नहीं यूज हुआ। You डू can का use क्यों हुआ wash. है? You can use. You can. Yes, absolutely. You can use the word wash. You can use the word clean. You can use the word do. Do means do the dish word is appropriate for washing the dishes. If you listen the word do the dishes, it means it is all about washing the dishes. If you listen I have to do the dishes, it means मुझे बर्तन धोने हैं. So बर्तन धोना, do the dishes. I prepare the breakfast. मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। Okay, I make my children ready for school. मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। That's right. I feel lazy, so I keep laying on a bed. मैं लेजी सुस्ती फील महसूस करती हूँ। करता या बाज़ का कुछ लोग होते हैं जो उठने के बाद भी लेज़ी फील करते हैं. दे फील लेज़ी, वो उठ नहीं सकते, सो दे कीप लेइंग ऑन द बेड, वो बेड पे लेटे रहते हैं. कीप लेइंग ऑन बेड. और अगर आपको कोई कहे कीप लेइंग ऑन बेड, इसका मतलब है आप बेड पे लेटे रहो. आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए निकलता हूँ. आई डू अब्लूशन और आई मेक अब्लूशन, इसका क्या मतलब है? मैं वजू करता हूँ। आई से माय प्रेयर. मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान. मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। Okay, so let's have a routine of a housewife. My day starts with adhan फजर, यानी अजान फजर से मेरा दिन शुरू होता है. इसका क्या मतलब है? मेरा दिन अजान फजर से शुरू होता है। Okay. The next line, please. I offer my prayer. मैं नमाज अदा करती हूँ and recite the Holy Quran and करती हूँ after taking. Come again, please. I offer my prayer and recite the Holy Quran. मैं नमाज अदा करती हूँ और वज़ू करने के बाद after taking ablution. After making ablution, after doing ablution, after taking ablution, after making ablution. I offer my prayer and recite the Holy Quran. यहाँ पे देखिए offer एक वर्ड आ गया, I वर्ड एक सब्जेक्ट आ गया. एक सब्जेक्ट है वो अपना ही 3 सेंटेंसेस में, यानी कि ये जुम्बल सेंटेंस है. 3 सेंटेंसेस इसी में ही फैच हैं, जुम्बल हैं, जुड़े हुए हैं. तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो तीनों में सेम ही है, यानी आए. तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको तीनों फ़िक्रों में शुरू में इस्तेमाल कर लें. अगर नहीं तो विदाउट सब्जेक्ट फ़िक्रा जो है वो चल पड़ता है. जैसे आई ऑफर माई प्रेयर, आई रिसाइट द होली कुरान, आफ्टर आई टेक एब्लूशन. लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट किया आई तो देन आपको यहाँ पे टेक लगाना पड़ेगा. बट आफ्टर टेकिंग का मतलब होता है लेने के बाद या करने के बाद. आफ्टर टेकिंग एब्लूशन वज़ू करने के बाद. आफ्टर ईटिंग फूड खाना खाने के बाद. आफ्टर गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने के बाद. आफ्टर वेकिंग अप उठने के बाद. यानी आफ्टर के बाद फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है. बट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए आफ्टर आई टेकिंग एब्लूशन, फिर नहीं कहना, फिर कहना आफ्टर आई टेक एब्लूशन, आफ्टर आई गो टू स्कूल, आफ्टर आई वेक अप, आफ्टर यू वेक अप, आफ्टर यू कम बैक, आफ्टर आई सी यू, आफ्टर you see me.
after I speak to you, after I finish. तो I offer my prayer, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, and I recite the Holy Quran, और फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ after taking ablution, वज़ू करने के बाद. Before Ali comes back, अली के आने के बाद यहाँ पे I think Ali goes for okay. Before Ali comes back, अली के वापस आने से पहले we make the breakfast ready. हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट को रेडी करते हैं. Before Ali comes back, अली के वापस आने से पहले. आपके वापस आने से पहले before you come back. उसके वापस आने से पहले before he comes back. उनके आने से पहले before they come back, हम खाना तैयार करते हैं. We make the breakfast ready. We make the breakfast ready. हम बच्चों को तैयार करते हैं. We make the children ready. हम नाश्ता तैयार करते हैं. We make the breakfast ready. Now the next line. Ali reads in class 7. Ali किस क्लास में पढ़ता है? अली 7वीं क्लास में पढ़ता है. While जबकि Aisha is in 6th class. जबकि आयशा 6th क्लास में है. Both read in the same school. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. That's right. While both the sister and brother go for schooling, यानी जब both दोनों the sister and brother भाई और बहन go for schooling स्कूल के लिए जाते हैं. I work in the home. मैं घर में क्या करती हूँ? काम. I also buy some grocery for home. घर के लिए कुछ ग्रॉसरी लेते. ग्रॉसरी मीन सौदा सलफ, सामान घर का, अशियाए खरदोनोश. I buy vegetables. I prepare for lunch. So इसको ट्रांसलेट कीजिएगा. I work in the home. मैं घर में काम करती हूँ. I also buy some grocery for home. मैं घर के लिए कुछ ताज़ा सामान खरीदती हूँ. I buy vegetables. मैं सब्जियाँ खरीदती हूँ. I prepare for lunch. मैं दोपहर का खाना तैयार करती हूँ. देखिए यहाँ पे आपने लफ्ज़ ये क्या बोला है? Vegetables. ये वेजी नहीं है, ये वेज है. वेजिटेबल्स. Vegetables. और ये टेबल नहीं है, टेबल है. वेजिटेबल्स. Vegetables. या दैट्स फाइन. इंग्लिश में सिर्फ एक ही लफ्ज़ को हम स्ट्रेस देते हैं, यानी लंबा खींचते हैं. बाकी लफ्ज़ों को हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी बाकी वावल के हकूक़ छीन लिए जाते हैं. यानी ये वर्ड अगर अकेला टेबल होता दैन इट वाज फाइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेट मी शो यू एग्जांपल. ये लफ्ज़ क्या है? टेबल. अब टेबल. ओके अगर तो इसमें चुनांचे एक ही वावल था जो काबिल ज़िक्र था, इस वजह से उसको खींच लिया गया. अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कितने वॉल्स आ रहे हैं. देखिए 1 2 3 जो बोलने के काबिल हैं, जो वॉइस वाले हैं. तो देखिए ये वॉल जो हैं, ये सेलेबल जो हैं, इनमें से सिर्फ एक को हक मिलता है लंबा पढ़ने का. तो वो शुरू में हमने पढ़ लिया था वेज. उसके बाद फिर नहीं कहना, वेजिटेबल. सो आई बाय वेजिटेबल्स. I buy vegetables. Yeah, that's fine. I work in the home. मैं घर में काम करती हूँ. I also buy some grocery. मैं घर के लिए भी कुछ सादा सामान खरीदती हूँ. I buy vegetables. मैं सब्जियाँ खरीदती हूँ. I prepare for lunch. मैं दोपहर का खाना तैयार करती हूँ. ओके और यहाँ पे भी मैं आपको ज़रा ज़्यादा सख्ती तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक कायदा बता दूँ. ये लफ्ज़ आपने प्रीपेयर बोला है, आपने इसको क्या बोलना है? यहाँ पे आपने लंबा खींचना है. प्रिपेयर यानी PRP बोलना है. इसको इग्नोर कर दीजिए, ई को इग्नोर कर दें.
एग्जाम्प्ट कर दें, हटा दें, तो लफ्ज़ बनता है प्रिपेयर। आई प्रिपेयर फॉर लंच। प्रिपेयर। या प्रिपेयर। प्रिपेयर। आपने अच्छा नहीं किया, आपने रास्ते में क्यों खाया? मैंने आपसे कहा था ना आपने खाना हमारी तरफ खाना। मुझे पता नहीं था कि गुजरांवाला कितना दूर है। सो इट हैपन कि अभी वो आपसे पहले कोई स्टेशन आता है वज़ीराबाद या क्या था, जी वज़ीरावाला, जी वज़ीराबाद था। वहाँ पे जी। ट्रेन रुकी थी, तो वो खाने वाले ने पूछा कि सर क्या खाएंगे, तो मैंने उनको बता दिया कि लाइट सा दे, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या पकड़ा दी, तो वो मुझे पता नहीं चला मैंने कितना कुछ खा लिया। ऊपर से चाय भी पी ली, और ऊपर से ट्रेन जो थी रुकी, फिर से पता चला गुजरांवाला आ गया। मैं उतरा और ऊपर से इतना बड़ा चैलेंज पड़ा हुआ था खाने के लिए, और मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, अभी लेकिन मुझे वो आपने सारा अच्छा कुछ नहीं याद आ रहा है, आपका वो फ्रूट चाट, वो पिशावरी आंटी थी, चिकन। चिकन पिशावरी चिकन, और इसके साथ सर, साथ पास्ता कैसा लगा? पास्ता भी ज़बरदस्त था। वो आपने वो भी बनाए थे, वो बच्चों वाले जो थे, क्या निहारी भी बनाई थी? निहारी, तो वो मैंने खा ली थी। हालांकि मैंने अभी मैं तकरीबन मैं टोटल बाइट फुल हो चुका था। व्हाट कैन आई से, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम सही। ओके, ठीक है। हम रूटीन पढ़ रहे थे। While both the sister and brother go for schooling, I work in the home. I also buy some grocery for home. I buy vegetables. I prepare for lunch. Okay, when both Ali and Aisha come, जब दोनों, जब दोनों आशा और अली वापिस आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, while both, और ये भी when और while का मतलब सेम ही होता है, अगर यहाँ इस सेंस में इस्तेमाल हो। when का मतलब जब, और while का मतलब भी जब, लेकिन बाज़ औक़ात while इस्तेमाल होता है जब के। वो कहाँ पे था, यहाँ पे अली रीड्स इन द क्लास 7 while आयशा, यानी यहाँ पे आप कंपेयर कर रही हैं, कंपेरिजन के लिए। जैसे अली रीड्स इन क्लास 7 while आयशा, जबकि अली 7वीं में पढ़ता है, जबकि आयशा 6ठी क्लास में। और यहाँ पे वाइल शुरू में इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब होता है जब। और सिमिलरली व्हेन इस्तेमाल हुआ शुरू में, तो इसका मतलब भी बना जब। व्हेन बोथ अली एंड आयशा कम, जब दोनों अली और आयशा, तो याद रखिएगा कि बोथ के बाद आपको नेम भी लेने होते हैं। बोथ द सिस्टर एंड ब्रदर, बोथ अली एंड आयशा, याद रखिएगा। आई डू द डिशेस, क्या मतलब इसका, मैं बर्तन धोती हूँ एंड आयशा लेंड्स मी द हैंड। और आशा मेरी मदद करती है। गुड। आयशा लेंड्स मी हर हैंड या द हैंड, मतलब मदद करना। ये एक स्लैंग वर्ड में आप इनफॉर्मली बोल सकते हैं इन योर डेली स्पीकिंग, नो इशू। वी सेट द टेबल फॉर लंच, क्या मतलब इसका, हम दस्तरखान पे बस ये कि हम खाने का टेबल लगाते हैं, यानी लंच के लिए टेबल लगाते हैं। वी सेट द टेबल, यहाँ पे मैंने एक टी बोला, एक नहीं बोला, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब कभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, गौर कीजिए। यहाँ पे टी आ रहा था ना सेट का, जी क्या आ रहा था, टी आ रहा था, टी लेकिन आ रहा हम था, वो आगे भी टी आ रहा था, तो आप एक टी को हटा दीजिए। बाज़ का ऐसे होता है, हम इस तरह पढ़ते हैं इसको ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अरे ये सारा कुछ डल हो रहा है, लेट मी रिवाइंड। हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा इशू बनता है। वी सेट द टेबल, तो आपको वर्ड्स जो है लिंक करने होते हैं। लिंक करने का मतलब होता है मिला देना। वी हम सेट द पढ़ेंगे। टेबल, We set the table. या वी सेट द टेबल। We set the table. एक लफ्ज़ है ना स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, जी स्वीट हार्ट क्या है, sweetheart. तो आप इसको कैसे मिलाते हैं, स्वीट को आपने स्वी बोला, और पास का ऐसे होता है कि जो लफ्ज़ आखिर पे टी पे ख़त्म होता है, ये मास्टरिंग टी का रूल है कि लफ्ज़ टी पे ख़त्म हो रहा हो और टी से पहले वावल आ रहा हो, यानी क्या आ रहा हो, वावल आ रहा हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें टी को ख़त्म कर देना होता है, तो हम इसको स्वी बोलेंगे, स्वी हार्ट, या फिर इसको बोलें स्वीट हार्ट, यानी इसको इससे मिला दें, स्वीट हार्ट।
स्वीट हार्ट Yeah, या फिर sweetheart. हार्ट। Sweetheart या फिर sweetheart. Sweetheart. Similarly, set the table for lunch and Ali goes to take a nap. Take a nap का क्या मतलब? हाँ, Ali goes to take a nap. इसका क्या मतलब है? इसका नहीं पता सर। Okay. Ali goes to sleep for a little time. ओके। यानी स्लीपिंग जो होती है दोपहर के वक्त हल्के से टाइम के लिए, रेस्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वो नैप होता है जिसमें आप उसको जगा भी दे तो उसका नुकसान नहीं होने वाला था, वो रेस्ट में ज़रूर कहलाता है। और यह होता है कि दिन का टाइम किसी भी वक्त सोना नैप कहलाता है, जो फेक किस्म का सोना हो, ओरिजिनल सोना ना हो। सो अली गोज़ टू टेक अ नैप। आफ्टर दैट, उसके बाद आयशा आल्सो गोज़ हर रूम फॉर रेस्ट। उसके बाद आयशा भी अपने कमरे में रेस्ट के लिए चली जाती है। या आफ्टर दैट, इसको इकट्ठा पढ़िए। आफ्टर दैट आयशा आल्सो गोज़ हर रूम फॉर रेस्ट। आफ्टर दैट आयशा आल्सो गोज हर रूम फॉर रेस्ट। या फॉर रेस्ट। फॉर रेस्ट। My both children are interested in self-creativity. Hello. मेरे दोनों बच्चे सेल्फ क्रिएटिविटी में दिलचस्प हैं। दिलचस्पी लेते हैं। सेल्फ क्रिएटिविटी खुद से बनाना। या सेल्फ क्रिएटिविटी, इसको आप क्रिएटिविटी बोलो ना। क्रिएटिविटी। या क्योंकि ये टी जो है दोनों वावल के दरम्यान में घिरा हुआ है, ये भी मास्टरिंग टी का रूल है कि अगर टी दोनों वावल में घिरा हो तो फ्लैप टी की आवाज़ आती है। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। Good. Aisha loves to paint. She has sketched a lot of things in her room. Aisha loves to paint मतलब आयशा को पेंटिंग पसंद है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आयशा loves painting. आयशा loves painting. आयशा को पेंटिंग पसंद है। She has sketched a lot of things in her room. उसने अपने कमरे में बहुत सी पेंटिंग क्या की हुई हैं, स्केच की हुई हैं। While जबकि अली loves playing games on station, यानी वो प्ले स्टेशन होता है ना, उसके ज़रिए वो गेम्स खेलता है। Loves playing, loves painting, यानी ये उनके क्या है, इंटरेस्ट हैं। He also goes out with friends, वो दोस्तों के साथ बाहर भी जाता है। He also hangs out कह सकती हैं आप। He also hangs out with friends, वो दोस्तों के साथ बाहर जाता है। Hangs out या goes out, hang out या go out। ये वर्ड क्या है, goes out। goes out। Yeah, goes out। He also goes out with friends। Ali helps her sister in doing homework while I help Ali। Ali helps her sister, Ali अपनी बहन की मदद करता है in doing the homework करने में, while जबकि I help Ali, मैं अली की हेल्प करती हूँ। while क्या मतलब है, जबकि। Ali helps writing the homework to her sister। Ali helps writing, अली लिखने में मदद करता है टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर की, द होमवर्क में। अली हेल्प्स राइटिंग द होमवर्क, अली होमवर्क राइटिंग में हेल्प करता है टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर की। अली इज़ गुड एट मैथ, अली मैथमेटिक्स में, हिसाब में अच्छा है। अली इज़ गुड एट मैथ, यानी रियाजी उसकी अच्छी है। ही सॉल्व्स आउट द क्वेश्चंस फॉर आयशा, वो आयशा के लिए क्वेश्चन हल करता है। हु फॉलोज अली इंस्ट्रक्शन, जो कि अली की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करती है। हु जो कि, कौन, वो आयशा। जो आयशा। ही सॉल्व्स आउट द क्वेश्चन फॉर आयशा, वो आयशा के लिए
सवाल हल करता है हु फॉलोज अली इंस्ट्रक्शंस, जो कि अली के इंस्ट्रक्शन पे अमल करती है। आफ्टर द डिनर, डिनर के बाद, एट द इवनिंग, इवनिंग के वक्त, मी एंड माई चिल्ड्रन गो फॉर बेड, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं? सोने के लिए, गो फॉर बेड। मी एंड आयशा वॉच टीवी, मी एंड आयशा वॉच टीवी, मैं और आयशा क्या करते हैं? टीवी टीवी देखते हैं। देखते लेकिन यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगर आयशा वॉच टीवी हो तो फिर आयशा वॉचेस टीवी आना है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स आ रहे हो, जैसे मैं, आई एंड आयशा, या फिर मी एंड आयशा, देन नो नीड टू यूज़ ईएस, क्योंकि फिर वो सिंगुलर प्रोनाउन नहीं रहते, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहते। वर्ब को आपने सिंगुलर ही रखना है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक अहम रूल होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल हो वहाँ पे वर्ब को जमा कर दिया जाता है एस या ई एस लगा के। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, मी एंड आयशा, और अगर वाहिद नाम हो, जैसे अली या आयशा लिखा होता, ये ना लिखा होता मी एंड, लिखा होता आयशा एंड वॉच टीवी, तो फिर आपको ये वर्ब जो है वो जमा करनी पड़नी थी। वाहिद जमा सुना है ना आपने, ये वाहिद हो तो ये जमा करना पड़ेगा, अगर ये जमा हो तो फिर ये वाहिद करना पड़ेगा। सो चुनांचे हमारे पास सब्जेक्ट जमा है, तो हमारे पास वर्ब कौन सी होनी चाहिए? वाहिद की। सो मी एंड आयशा वॉच टीवी, मैं और आयशा टीवी देखते हैं। वाइल, जबकि, अली कीप्स प्लेइंग हिज गेम्स, अली खेलता रहता है गेम्स। एंड देन, और फिर, तब, एंड देन, और तब, गोज़ टू स्लीप, सो जाता है, एट द सेम रूम, उसी कमरे में। दैट्स द रूटीन फॉर आवर डे, ये है हमारे दिन की रूटीन। ऑलराइट, ऑलराइट। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? I wake up at 6 o'clock early in the morning. 6 o'clock नहीं, o'clock। Early in the morning. What do you do after you wake up? I make ablution after After I say my prayer of Fajr prayer. yeah, prayer of Fajr. Do you recite the Holy Quran after you wake up? Yes, I recite the Holy Quran. Yes, I do. The Holy Quran. Walking after waking up. After waking up. ये भी एक अहम सी चीज़ है कि जब ING वाला वर्ड हो, आप उसमें से जी जो है वो हटा सकते हैं। वेकिन कहा जाता है, अगर आप इसको हटा ही दें तो ये लफ्ज़ बनता है वेकिन। तो आप जो भी फोर्थ फॉर्म होती है ING वाली, वो तो एब्सोल्युटली जी में होती है, तो आप उसमें से जी हटा दें तो लफ्ज़ बनता है वेकिन। After waking up. Yeah, after waking up. Where do you go after you finish your breakfast? I go to school. How many hours do you work there? या फिर do you spend there? यानी आप वहाँ कितने घंटे गुजारते हैं या कितने घंटे काम करते हैं? मैं वहाँ 8 घंटे के लिए रहता हूँ, काम करता हूँ, या 8 घंटे गुजारता हूँ, या फिर I spend 8 hours. I stay there for 8 hours a day. Yeah. I spend 8 hours a day. Alright. Alright. Does your company offer you overtime? आपकी कंपनी आपको ज्यादा औकात में काम करने की पेशकश करती है?
Yes, sometime. Yes, sometimes, बाज औकात. Okay. Do you know how to drive? क्या आपको ट्रैवलिंग करनी आती है? Do- No, I don't. Do you know swimming? क्या आप कर सकते हैं? Yes, I I know how to swim. I do know swimming. Hmm. Yes, I know. No, I don't. I don't know how to swim. I don't know swimming. ये लफ्ज़ क्या है? Swimming. या स्विमिंग. यहाँ पे भी जी आप हटा Swimming. सकते हैं. Do you go for morning walk? क्या आप की वाक के लिए निकलते हैं? Yes, I go gym. मैं जाती हूँ. I sometimes. मैं बास के साथ जाती हूँ. I go oftenly. मैं अक्सर जाती हूँ. I go very often. What are you gonna up to? अब आप क्या करने लगे हैं? I'm gonna get ready. I'm gonna sleep. Yes, I'm gonna sleep. What time do you go for bed? आप सोते किस वक्त हैं? I go at 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. Do you offer all prayers throughout the day? क्या आप में साथ है? Alhamdulillah, I do. Yes, Alhamdulillah, I do. What do you do when you miss any prayer? जब आपकी कोई नमाज आप क्या करते हैं? Well, it never happened. That it will happen. I shall have to prayer next prayer. Yes, first of all, it never happened. पहली तो बात ये कि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है. कैसा कि I missed any prayer. Secondly, if it happens, I shall have to pray with the next prayer. और अगर ऐसा हो, I shall have to, मुझे करना होगा to pray, नमाज पढ़ना with the next prayer, दूसरी नमाज के साथ. I shall have to offer prayer. Okay. Okay. वेल एफ़ी दैट्स ऑफ नाउ. एंड हमने पिछले इस बात में पढ़ा हुआ है हैव एज एट, जिसमें हमने कुछ सेंटेंसेस, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, उनको इस्तेमाल किया वाज़ेह मिसालों के साथ. फिर हमने विल और शैल का हल्का सा टच लिया था, और उम्मीद है कि कल का जो लेक्चर होगा वो विल और शैल पर होगा, जिसमें आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसेस जो हैं वो क्लियर होंगे. मगर फिर भी हम इंग्लिश टेंसेस अलग से भी करेंगे. अलबत्ता जो विल और शेल की मदद से हमने 3 किस्म के असबाब करने हैं कल, सिर्फ और सिर्फ विल और शेल के हवाले से, वो ओवरऑल विल और शेल का ही लेक्चर होगा. उसमें 3 टेंसेस भी कवर हो रहे होंगे, वो हमारे सिक्योर हो रहे होंगे. इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट. उसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे. That is very simple thing. So it's time to go now. Effie, have a good time. Thanks for being with EA.